بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان بھائی بہن اپنا یہ محاسبہ کر لے، اپنے اندر گلبان کو اپنے جانچ کر کے دیکھے کہ آیا کہ یہ جو 3 عادتیں ہیں، یہ 3 خرابیاں ہیں، یہ ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر تو پائی جاتی ہیں تو میرے بھائیوں ابھی بھی موقع ہے، آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساری عمر ہم جنت سے بھی محروم رہیں۔ اور وہ 3 قسم کی عادتیں کون سی ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ ایک مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اس برائی سے، اور ہمارے معاشرے کو اس برائی سے پاک فرمائے۔ وقاطع الرحم، رحم اور قطع تعلق کرنے والا۔ ومصدق بالسحر، اور جادو کی تسبیح کرنے والا۔ 3 آدمیوں میں سب سے پہلا شراب کا عادی ہے۔ شراب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ بتایا ہے، اور وہ تمام گناہوں کی جڑ اس وجہ سے بتایا ہے کہ جب جو شخص شراب پیتا ہے تو شراب کے بعد اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، پھر جو چاہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کو کسی نے گرفتار کیا، پکڑ لیا اور اس سے یہ کہا کہ 3 کاموں میں سے ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، یا شراب پیو، یا پھر گناہ کو قتل کر کے آؤ، فلاں کو کے ساتھ بدکاری کر کے آؤ۔ شراب، قتل اور زنا۔ اس نے یہ سوچا کہ ان تینوں میں سے ہلکا اور آسان یہ ہے کہ شراب پی لی جائے، چنانچہ اس نے شراب کو پی لیا۔ جب شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد اس نے باقی 2 کام بھی کر لیے، قتل بھی کر دیا اور زنا بھی کر دیا۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی تمام پینے کی چیزوں سے محروم کریں گے، اور اس کو دینۃ الخوال پہلایا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ اور خون، یہ اس کو پلایا جائے گا، اور اس سے یہ کہا جائے گا یہ اس شراب کی سزا ہے جو تم دنیا میں پیا کرتا تھا۔ شراب سے ملتی جلتی ہر وہ چیز ہے کہ جس میں نشہ ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے نشہ آتا ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ آج نام بدلے جاتے ہیں، اور نام بدل کر ان چیزوں کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور نوجوان نسل
इस पर लग जाती है तो इंतहाई बदतरीन जुर्म है, इंतहाई बड़ा जुर्म है। सिगरेट से आगे बढ़ते 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 चर्च पे लग जाता है, फिर चर्च से आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्या कुछ बलाएं खाता पीता है, जिससे उसकी सेहत भी इंतहाई मुतासर होती है, जवानी भी मुतासर होती है, इबादत और ईमान भी मुतासर हो जाता है। इसलिए इस गुनाह से अपने आप को और अपनी नस्ल को, अपने माहौल को बचाया जाए। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, वकात और रहम, कतए ताल्लुक और रहम करने वाला वो भी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और तीसरा, जादू की तस्बीह करने वाला, जादू की तस्बीह करना, जादू कराना, जादू करना ये कुफर है। जादू की तमाम किस्में कुफर हैं। इंसान इस्लाम से निकल जाता है जादू में, टोटके के जरिए से, सहर के जरिए से, जादू के जरिए से किसी मुसलमान को नुकसान दिया जाता है, चाहे जानी नुकसान हो, चाहे माली नुकसान हो। जब किसी से हसद में इंसान मुब्तला हो जाता है तो उस हसद में मुब्तला होने के बाद आदमी जब उसको सामने से नहीं हटा सकता तो फिर आदमी छुप छुपा करके इसके पीछे जादू करता है। और कितने लोग रोजाना हमारे पास आते हैं, इस किस्म की शिकायत लेके आते हैं, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने सहर करा दिया, घर में कपड़े देखो तो कपड़ों के ऊपर खून के छींटे, घर में कपड़े फट जाते हैं, घर में छिछड़े पड़े हुए, ये क्या है? ये सब सहर है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ने का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये असर नहीं करा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इसके पढ़ने का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह सहर और जादू असर नहीं करेगा। तो ये 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके मुतालिक इरशाद फरमाया कि इस किस्म के गुनाह करने वाले आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक शराब का आदी, दूसरा कतई ताल्लुक करने वाला, और तीसरा सहर और जादू की तस्बीह करने वाला। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इरशाद फरमाया, तबीदु कौमिल मिन हाज़िहिल उम्मा अला तौमिन व शुर्बिन व नहविन व इबिन फयुस्बिहु कद मुसिकु किरादतन व हनाज़ीर, कि इस उम्मत के कुछ लोग रात गुजारेंगे अला तौमिन, हराम खाते हुए, व शुर्बिन, शराब पीते हुए, व लहविन व नईबिन, खेल तमाशा करते हुए रात गुजारेंगे। रात में नाच गाना होगा, खेल तमाशा होगा, हराम चल रहा होगा, शराब पी जा रही होगी और औरतों की इज्जतों को लूटा जा रहा होगा। इस तरह से रात गुजारेंगे। वयुस्बिहु कद उसिहु किरादतन व हनाज़ीर, चुनाचे वो सुबह जब देखेंगे कि उनकी शक्लें बंदर और खंजीर बन चुकी होंगी, बदल दिए जाएंगे। क्यों? वशुर्बिहिमिल हम्र, इसलिए कि उन्होंने शराब पी है। शराब की सजा यही है। इसलिए कि उन्होंने रेशम पहनी है, इसलिए कि उन्होंने नाचने और गाने वालियों को तरजीह दी है, अहमियत दी है। वक़तियत उम्मिर रहम, इसलिए कि उन्होंने सुलह रहमी को काटा है, कतई ताल्लुक किया है। तो ये वो जुराइम हैं जिन जुराइम की वजह से आदमियों की शक्लें बदल जाती हैं। शक्लों को बदलना 2 तरह का है। बास मुहद्दिसीन ने
इस हदीस को बिल्कुल जाहिर पर मअमूर किया है कि जब ऐसा होगा तो कुर्ब क़यामत के नजदीक शक्लें बदल जाएंगी, इंसानों की शक्लें बंदर और खंजीर की तरह बदल जाएंगी। ये जराम करने वालों की शक्लें बंदर और खंजीर जैसी बन जाएंगी। और बाज़ मुहद्दिसीन ने इसका माना ये लिखा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एजाज है कि शक्लें तो नहीं बदलेंगी, आदतें बदल जाएंगी। तो आदतें बदलना तो यकीनी है। क्या मतलब कि जब सुबह होगी तो उनकी आदतें बंदरों और खंजीरों जैसी होंगी। बंदरों की आदत क्या है? नक्काली करना। किसकी नकाली? जिसको देखा उसकी ही नकल लगाते हैं। तो ये मुसलमान ऐसा होगा कि यहूद और नसारा की नकाली करेगा, शराब पीने की वजह से और रेशम पहनने की वजह से और कतई ताल्लुकी करने की वजह से उसका ये मजाज बन गया कि अपने लिए यहूद को, नसरानियों को अपना आइडियल, अपना नमूना समझेगा। आज यही हाल है। और दूसरा इरशाद फरमाया कि खंजीर की आदत आ जाएगी। खंजीर की आदत क्या है? बेहया, इंतहाई बदतरीन और बेहया जानवर है। जो कौम खंजीर खाती है उस कौम के अंदर बेहयाई पैदा हो जाती है। जानवरों के असरात मुंतकिल होते हैं। अपने खाने में, अपने पीने में सब बातों की रियायत रखा करो। हमारे खाने पीने में हराम चीजें ना मिलें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे और जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे। एक वो आदमी कि जो कतई ताल्लुक करने वाला है, एक वो आदमी जो शराब का आदी है, और एक वो आदमी जो जादू करता है। ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे। और फिर इरशाद फरमाया, सुनो, जन्नत की खुशबू वो 1000 साल की मुसाफत से सूंघी जाएगी। तो ये तो खुशबू भी नहीं सूंघे, जाना तो बाद की बात है, खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। अल्लाह पाक हम सब को इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो कोई मेरे भाई बहन इस गुनाह में मुब्तला है वो आज से तौबा कर ले और आज से इन 3 किस्म के गुनाहों को छोड़ दें। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम की समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेकी के इस काम में आप हमारा साथ दें और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।